Hello dear students, welcome to the video today. So children, we are carrying on with this chapter 3 geography, the drainage system. हम drainage को समझने की कोशिश कर रहे हैं. Drain? कौन सा drain? Yes, we are actually talking about river system. कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाना है, ये जो रास्ता है बहुत ही पुराना है. I was just getting into a poetic mood, लेकिन that's the story of the rivers. These rivers, why do we respect these rivers? Why do we adore these rivers? Why do we worship these rivers? Indus River? Yes. आज भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता. आज भी when we talk about the Ganga river system, हम क्या पढ़ते हैं? We talk about the Ganga Valley and the Mauryan Empire and the Gupta Empire. All these greatest of the empires that have developed on the banks of river Ganga. Ganga is the river which has witnessed all the incidents that were existing. कब से पता नहीं बह रही है, तो सारा चीज़ें गंगा ने देखा है. So Ganga is very historical to us, Ganga is very religious to us, and we respect Ganga in all the manners. कहाँ से निकल रही है? Where it is coming out? It is coming out from, it is also called as Bhagirathi, yes. Because Bhagirath was there, King Bhagirath was there. कहते हैं the has worship God कि आप ये please come give us something, some water in abundance, so that there can be always life awake in the country. पूरे देश में हमेशा हरियाली रहे, तो उसके लिए God has given Ganga. एंड गंगोत्री ग्लेशियर से इट इज़ कमिंग आउट. गंगोत्री में जो ग्लेशियर है वहाँ से गंगा इज़ कमिंग आउट. एंड देव प्रयाग में इट इज़ जॉइंड बाय अलकनंदा. एंड हरिद्वार इज़ द प्लेस. हरिद्वार, द वर्ड इटसेल्फ हैज़ गॉट द मीनिंग. हरि का जो द्वार है, भगवान जिस गेट से इंडिया द प्लेन्स में एंटर कर रहे हैं, वहाँ से गंगा इज़ एंटरिंग द प्लेन एरिया. उसके पहले गंगा पहाड़ों पे रहती है. हरिद्वार इज़ द फर्स्ट प्लेन प्लेस वेयर गंगा इज़ फ्लोइंग. अदरवाइज above that Ganga has got only Ganga is found only in mountains. बड़े बड़े पहाड़ों में हमको गंगा का ओरिजिन मिल रहा है. एंड ये देखिए, अब ये मैप हम लोगों को देखना है. आई विल बी शोइंग यू दिस मैप, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. ये देखो, एक बहुत ही खूबसूरत सा पिक्चर है चिल्ड्रन. आई विल शो इट टू यू. गंगा कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा एट देवप्रयाग. ये देखो, ये दिस इज द देव प्रयाग चिल्ड्रन. देव प्रयाग एज द वर्ड इटसेल्फ गॉट द मीनिंग वेयर द गॉड्स रेसाइड. देव प्रयाग, हाँ, जहाँ देवता रहते हैं. सो फ्रॉम वन साइड अलकनंदा इज कमिंग, ऑन वन साइड गंगा इज कमिंग, एंड देन कन्फ्लुएंस इज देयर. कन्फ्लुएंस मीन्स बोथ ऑफ देम गेट मिक्सड अप. ये मिक्सअप होके आगे के लिए ये रिवर इज फ्लोइंग. दिस रिवर इज फ्लोइंग फर्दर. नाउ आप ये गंगा, बिकॉज दिस रिवर in the country, lot of tributaries are there that is joining Ganga, which is coming out from the Himalayas. Himalayas से बहुत छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं. हम अभी देखेंगे. I'll show it to you in the map, my dear students. मैप देखना ज़रूरी है. मैप वर्क is very important, especially in this chapter. You need to do the map work. तो छोटी छोटी नदियाँ जो हैं वो गंगा को ज्वाइन कर रही हैं. एंड गंगा धीरे धीरे इट इज़ गेटिंग huge and wide. पहाड़ों पे ही it is joining. Yes, in the plain area also कुछ जगह हैं जहाँ पे कि छोटी नदियाँ बह रही हैं, वो आके गंगा में मिल जाती हैं. तो some of the names are here, the rivers which are joining the Ganga.
It is the Yamuna, it is the Ghaggar, it is the Gandak, and it is the Kosi. Yamuna, Ghaggar, Gandak, and Kosi. All these rivers are joining the Ganga. And river Yamuna, it is coming out. River Yamuna कहाँ से निकल रही हैं? River Yamuna is coming out of the Ganga is coming out of glacier, and Yamuna is coming out of Yamunotri glacier, Himalayas में. और गंगा के साथ ही ये बह रही है ये नदी. It is flowing along with Ganga, and as a right bank tributary meets the Ganga at Allahabad. इलाहाबाद में गंगा के साथ इनका संगम होता है. संगम, यू नो इट वेरी वेल. गंगा यमुना, एक नीचे में भी नदी फ्लो करती है विच इज़ कॉल्ड एज सरस्वती. इट इज़ नॉट मैंशनड. It is written in the books, it has been done, lot of research work has been done कि ये जो नदी है ये विलुप्त हो गई है. This river once upon a time it was flowing, but now it is no more flowing. तो गंगा, यमुना एंड सरस्वती इज देयर. यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना इज कमिंग आउट. गंगा के पैरेलल दिस रिवर इज as a right bank tributary meets the Ganga at Allahabad. ठीक हैंड साइड में ये जाके इलाहाबाद में it is meeting, and then we have rivers names you have to remember. 9th class, I told it in the last class also, 9th class के लिए याद मत करो, but for your future examinations के लिए इसको ज़रूर याद रखना. Please do remember these for your future examinations. Okay, Ganga से related, and Ganga being the most important source of water for the Indians, you need to know each and every detail about river Ganga. Okay, अब they are the rivers, ये वो नदियाँ हैं which flood parts of the northern plains. Northern plains को पूरी तरह से अगर किसी नदी ने कवर किया है एवरी ईयर, कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइफ का और प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है. एंड दे आर एनरिचिंग द सॉइल फॉर एग्रीकल्चरल यूज़. ओके, Ghaggar is there, Gandak is there, Kosi is there. They are rising in the Nepal Himalayas. They are the rivers. ये वो नदियाँ हैं which are flooding parts of the northern plains. Northern plains को ये पूरा ड्रेन कर रहे हैं every year. Wide spread damage to life and property. बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को नुकसान पहुँच रहा है. एंड दे आर एनरिचिंग द सॉइल फॉर एग्रीकल्चर यूज़. लेकिन सॉइल को फ़ायदा होता है. पूरा का पूरा जो सूखी मिट्टी है उसके ऊपर जब गंगा का पानी आ जाता है तो कहीं ना कहीं से तो मिट्टी को फ़ायदा होगा ना. सॉइल इज़ गेटिंग ड्रेन्ड बाय द गंगा रिवर. दिस इज़ समथिंग वेरी गुड फॉर द सॉइल. अब ये तो हो गया गंगा की कहानी. प्लीज़ अंडरस्टैंड मेन ट्रिब्यूटरीज. बहुत सारी ऐसी भी नदियां हैं विच कम फ्रॉम द पेनिन. साउथ के तरफ से भी आके बहुत सारी नदियां हैं जो गंगा में मिल रही हैं. येस माय डियर चिल्ड्रन, आप सोचोगे नॉर्थ में गंगा इज फ्लोइंग, बट देन सम ऑफ द स्मॉल रिवर्स आर देयर विच आर वेरी ईगर टू जॉइन गंगा. गंगा नदी को ज्वाइन करने के लिए बहुत सारी छोटी नदियाँ जो हैं, कहते हैं कि द रिवर्स फील, ऐसा नदियों को लगता है कि उन नदियों का पानी जो है वो पवित्र. वाटर हैज़ बिकम पवित्र बिकॉज ऑफ द गंगा रिवर. गंगा की प्योरिटी that is there in Ganga, it has made these rivers very pure, making it pure day by day. अब ये कहाँ से आती हैं? These rise from the semi-arid areas, जहाँ पे कि थोड़ा सा सूखा पड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा, where there is no lot of water. सेमी एरिड, एरिड का मतलब देखो, जहाँ एरिड वर्ड आ रहा है वहाँ समझ लेना कि थोड़ा सूखा से मतलब है.
शॉर्टर कोर्स एंड डू नॉट कैरी मच वाटर इन देम। नदियाँ हैं, छोटी नदी है, गंगा तो विशाल नदी है। गंगा इज अ बिग रिवर, दीज रिवर्स आर स्मॉल रिवर्स, small channels, in a very small way it is flowing, but it has lot of importance for that region. Okay, एक चंबल में बेतवा और सोन नाम की नदियां हैं। बहुत बड़ी नदियां तो नहीं है, लेकिन येस इन इट्स ओन वे इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो कहाँ पे और कैसे ये गंगा को ज्वाइन करें, ये अभी मैं आपको आई विल बी शोइंग इट टू यू इन द मैप। थोड़ा सा ये कर लें, उसके बाद मैप देखते हैं। वी विल जस्ट कंप्लीट दिस। ओके, अब क्या है, एनलार्ज्ड विद द वाटर्स। ठीक है, गंगा जो है छोटी सी नदी है, लेकिन अब धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। कैसे? एनलार्ज्ड। देखो, गंगा इज गेटिंग एनलार्ज्ड। गंगा नदी बड़ी हो रही है। कैसे हो रही है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द वाटर्स, जो आस पास से पानी आके गंगा नदी में मिल रही है, फ्रॉम इट्स राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज नदी, छोटी नदियाँ जो हैं, जो कि आके गंगा में मिक्सअप हो रही हैं। गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड्स। ठीक है, पूर्व की तरफ गंगा इज फ्लोइंग टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल। फरक्का है वेस्ट बंगाल में, फरक्का इज द डैम, फरक्का डैम इज देयर, वहाँ तक गंगा इज फ्लोइंग वेस्ट बंगाल में। आई हैव सीन दिस फरक्का डैम, या वहाँ पे आई वॉज, माई फादर वॉज पोस्टेड, सो आई हैव वेरी ब्यूटिफुल। ओके, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द गंगा डेल्टा। गंगा का जो डेल्टा रीजन है ना, फरक्का डैम, गंगा इज फ्लोइंग ईस्टवर्ड्स टिल फरक्का इन द वेस्ट बंगाल, एंड दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा। सबसे नॉर्थ में द पॉइंट वेयर गंगा इज मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट, यहाँ पे इसके बाद यहाँ से ये नदी दो भाग में बढ़ जाती है। हियर द रिवर बाइफकेट्स। प्लीज अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बाइफकेट्स। बाइफकेट मीन्स डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स। और ये कौन से हैं? भागीरथी एंड देन हुगली। जब नदियाँ, जैसे कि रिवर इज फ्लोइंग, रिवर इज फ्लोइंग, रिवर इज फ्लोइंग, ठीक है, व्हेन द रिवर्स कम, छोटी छोटी नदियाँ आके इसमें एक नदी मिल गई, एक नदी मिल गई, इधर से एक नदी आ गई, इधर से एक नदी आ गई है, दिस आर ट्रिब्यूटरीज। इनको हम क्या करेंगे? कहेंगे दीज आर ट्रिब्यूटरीज। अब एक वर्ड आप देखोगे विच इज सेइंग डिस्ट्रीब्यूटरी। भागीरथी के टू पार्ट्स हो जाते हैं, विच इज भागीरथी एंड हुगली। अब ये डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है? गंगा इज फ्लोइंग, फरक्का डैम के पास आके गंगा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये एक इधर चले जाता है, एक रिवर का पार्ट, एक इधर आ जाता है, दिस इज द हुगली। बंगाल में हुगली रिवर है, गंगा का ही पार्ट है, बट इट इज द हुगली रिवर। तो ये when the river is bifurcating into two parts, it is called as distributary, कि उस मेन नदी से एक और नदी निकली है, so it is called as distributary। एंड इसके बाद यहाँ से गंगा स्टार्ट्स फ्लोइंग साउथवर्ड। द गंगा ये है वेस्ट एंड ये ईस्ट है, नॉर्थ है। सो द गंगा which has started from here, started from here, started from here, यहाँ पे आके गंगा इधर चली जाती है और हुगली रिवर जो है वो साउथ के तरफ आ जाती है। ठीक है, दिस इज द साउदर्न मोस्ट पोर्शन एंड द रिवर इज स्टार्टेड फ्लोइंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, टुवर्ड्स द साउथ। ओके, एंड इट इज फ्लोइंग इन द साउथवर्ड्स इनटू बांग्लादेश एंड इज जॉइंड बाय द ब्रह्मपुत्र। अब यहाँ पे हुगली नदी को एक और नदी, one more river is joining the Hooghly river, and it is called, this river is known as Brahmaputra. Got it? गंगा हो गया, यमुना हो गया, गंगा के दो पार्ट्स हो गए, हुगली
and one river is more joining Ganga river, that is Brahmaputra. Further आगे चल के इसी नदी को बांग्लादेश में when it enters it is called as मेघना. ठीक है, मेघना is a big river. गंगा की ही it is a part. It is a part of river गंगा only. And this mighty river, ये जो बड़ी सी नदी है ना, mighty river, जिसमें कि गंगा का और ब्रह्मपुत्र का पानी है, in which the Ganga and the Brahmaputra water is situated, flows into the Bay of Bengal. ये जो नदी है ये जाके कहाँ मिल रही है? It is flowing into the Bay of Bengal. और यहाँ पे जब क्या होता है, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि नदी बह रही है, बह रही है, बह रही है. So when it is coming from up to the down तब तो वो बह रही है, but when it is in the plain area तो बहने में दिक्कत होती है. It is very difficult to flow. So when it is coming here, यहाँ से it is, यहाँ पे we have the BOB. ठीक है, when the river is flowing and then it has come on the plain and here is BOB, Bay of Bengal. यहाँ पे आके ये पूरा डेल्टा रीजन बन जाता है. रिवर इज कमिंग एंड मिक्सिंग विद द सी. समुद्र के साथ ये नदी मिल जाती है अपने साथ. वॉट एवर डेब्रिस द गंगा हैज़ ब्रॉट. गंगा हैज़ इरोजनल फीचर्स ना. एवरी रिवर हैज़ गॉट इरोजनल फीचर. is flowing, it is carrying with it lot of material. सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सारी चीज़ें जो नदी अपने साथ ला रही है, दैट इज डिपॉजिटेड ऑन द सी साइड. समुद्र के पास लाके द वाटर मिक्सेस विद द सी एंड ऑल द मटीरियल दैट द रिवर हैज़ ब्रॉट इज सेटलिंग देयर. तो ये वर्ल्ड का, आई थिंक इट इज़ वर्ल्ड्स का तो नहीं, लेकिन इंडिया का शायद सबसे बड़ा डेल्टा है द सुंदरबन डेल्टा. गंगा बिगेस्ट रिवर इज़ ब्रिंगिंग सो मच ऑफ मटीरियल विथ इट. अपने साथ ये जो गंगा नदी इतना सारा सामान लेके आ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या बन रहा है? सुंदरबन डेल्टा. सुंदरबन डेल्टा वहाँ पे फॉर्म हो गया. एंड यहाँ से क्या होता है गंगा रिवर का, अब हम बाकी के फीचर्स देखेंगे. Some very interesting facts are given here, children. We need to see this. ये देखिए यहाँ पे क्या है. एक the government has started the नमामि गंगे program. नमामि गंगे क्या है ये? This is a conservation mission. ये एक प्रोग्राम चलाया है गवर्नमेंट ने, जिसमें कि गंगा नदी को प्रिजर्व करने का उपाय किया जा रहा है. ओके, the river Ganga is being preserved and conservation mission है ये, approved as a program. एक प्रोग्राम ये चलाया गया है, यूनियन गवर्नमेंट ने चलाया है जून 2014 में. इसके दो चीज़ें हैं. there are twin objectives, just it is mentioned here that it has to accomplish twin objectives. क्या क्या हैं? सबसे पहले तो पानी में कितना पॉल्यूशन है. ऑल द इंडस्ट्रियल वेस्ट इज ड्रेनिंग इन द रिवर. प्योरेस्ट वाटर हैज़ बिकम द मोस्ट पॉल्यूटेड वाटर. सोचो, इट इज सच अ सॉरी एंड सच an unfortunate thing that the most pure water has become water. अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को किसी न किसी तरह से ख़त्म करना है. देयर हैज़ टू बी कंजर्वेशन एंड रीजुविनेशन ऑफ द नेशनल रिवर गंगा. गंगा रिवर को बचाना है, कंजर्वेशन एंड रीजुविनेट भी करना है, उसको रीन्यू भी करना है नेशनल रिवर गंगा को. ठीक है, ये प्रोजेक्ट के बारे में नमामि गंगे का, ये देखो यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है, एक बारी जाके देखना. जस्ट गो थ्रू इट वंस एंड ट्राई टू फाइंड आउट द प्रोजेक्ट दैट इज गोइंग ऑन. ओके, अब एक और है सुंदरबन डेल्टा के बारे में हमने बात की. ऑल द मटीरियल दैट हैज़ बीन ब्रॉट बाय द रिवर
इट इज़ डिपॉजिटेड ऑन द साइड्स, ये यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। वेयर एंड डेल्टा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर एक सुंदरी ट्री मिलता है, सुंदरी ट्री से सुंदरबन बना है। यस, सुंदरी ट्री, ब्यूटीफुल ट्री। बट दैट्स द फैक्ट। मार्शी लैंड में जहाँ पे बहुत कीचड़ होता है ना, बिकॉज the material that is brought by the river, it is impure material, lot of polluted things are also there, it is all getting deposited on the banks of the ocean के embankments में, and it is the world's largest, मैंने अभी बताया ना, it is the largest, अब देखो facts में ही दिया हुआ है, it is the largest and fastest growing delta, ये delta दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। गंगा नदी में पॉल्यूशन चूंकि बढ़ रहा है। यस चिल्ड्रन, आई हैव टू से दिस, द मटीरियल दैट गंगा इज ब्रिंगिंग विथ इट, all the debris material that is being carried by Ganga all through the journey, गंगा नदी गंगोत्री से निकल के और सुंदरबन डेल्टा वहाँ तक आ रही है, बे ऑफ बंगाल तक व्हेन इट इज़ कमिंग, तो आप इसका बीच में कितनी जगह पे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, इट इज़ ऑल डिपॉजिटेड हियर, एंड इट इज़ द ऑल्सो द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। टाइगर, शेर यहीं मिलता है। शेर नहीं कहेंगे, आई एम सॉरी, टाइगर, लायन इज शेर, टाइगर इज बाघ। हाँ, रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो इसी। सबसे पहले ये देखिए गंगा का लेंथ 500 किलोमीटर है, बहुत लंबा सफ़र गंगा इज़ कवरिंग। जब हम फिगर 3.4 देखते हैं तो हम आइडेंटिफाई करते हैं ड्रेनेज पैटर्न को, गंगा रिवर के वजह से दिस रिवर सिस्टम, द ड्रेनेज पैटर्न दैट इज फॉर्म्ड, इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम दैट इज देयर, उसके बीच में एक बहुत बड़ा सा शहर सिचुएटेड है। ओके, गंगा रिवर सिस्टम की वजह से द डेल्टा दैट इज फॉर्म्ड वो तो अलग है। अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर। एक तरफ से गंगा जा रही है, एक तरफ से इंडस इज गोइंग। अम्बाला इज लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस। ठीक है, अब जो प्लेन रीजन है अम्बाला से सुंदरबन, अम्बाला कहाँ है? हरियाणा में। यस, अम्बाला इज इन हरियाणा और ये है सुंदरबन इज इन बंगाल। तो टोटल डिस्टेंस इज 1800 किलोमीटर। माय गॉड, जस्ट लुक एट द डिस्टेंस, लॉन्ग 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 डिस्टेंस। लेकिन 300 मीटर्स तक ही इट इज़ फ्लोइंग डाउन, फॉल इन इट स्लोप इज़ हार्डली 3। वहाँ पे अम्बाला में बहुत ज़्यादा पहाड़ी एरिया नहीं ना है, इट इज़ नॉट अ वेरी हिली रीजन दैट द फ्लो इज़ देयर ऑन अ वेरी लार्ज। तो 1 meter is there for every 6 kilometers, so river develops large meanders. Please understand, देखो इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। When the river is flowing, तो I told you, पहले भी मैंने बताया, flowing would be from a high level। इसके बाद यहाँ पे फ्लो किए थोड़ा सा, फिर 6 किलोमीटर तक फ्लो करने के बाद 1 मीटर का ही स्लोप मिल रहा है। रिवर जो नीचे तक आते हैं, व्हेन द रिवर इज फ्लोइंग इट्स फ्लो टुवर्ड्स द लोअर डायरेक्शन आफ्टर एवरी 6 किलोमीटर। फ्लो इज देयर टुवर्ड्स द डाउनवर्ड। मतलब देखो, हियर वी आर सेइंग कि देयर इज मोर ऑफ प्लेन एरिया rather than the hilly area। hilly area मिलेगा तो the river will be flowing in smoothly, लेकिन स्मूथ फ्लो नहीं है because river is not getting a proper slope। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, it is very clearly mentioned here कि river is not getting a proper slope is hardly 300 meters। okay, तो क्या हो रहा है? द रिवर इज डेवलपिंग लार्ज मियांडर्स। मियांडर्स जहाँ पे कि बहुत सारा डेब्रिस जमा हो जाता है,
The river is bringing lot of debris with it, and the debris deposits, and the river का जो the flow is here. अब जैसे कि river is flowing, अब it is depositing some material here, फिर river का direction will change. Then river will deposit some material here. यहाँ से फिर it will take a different direction. तो that is what is there कि जहाँ जहाँ deposited, वहाँ से the flow of the river changes. Got it, children? ये मैं बताना चाह रही थी. Now I need to show you the, my dear students, let's see the map. गंगा रिवर और उसके बारे में बात किया है. I'll show you those rivers only. So dear students, अभी मैप ये जो हम देख रहे हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड 2 रिवर सिस्टम्स वी हैव अंडरस्टूड. 2 रिवर्स के बारे में हमने जाना. एक तो इंडस रिवर देख लीजिए, यहाँ पे है, कहाँ से इट इज़ कमिंग आउट, कहाँ जा रही है ये रिवर, झेलम, चेनाब, राबी. लेकिन ब्यास नदी जो है ना, ब्यास नदी इज़ इन इंडिया ओनली, लेकिन इट इज़ गोइंग एंड जॉइनिंग द इंडस रिवर. जब व्हेन द रिवर्स आर, कभी कभी क्या होता है कि रिवर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और कुछ पानी वहीं पे रह जाता है, जिसके वजह से एक लेक फॉर्म हो जाता है. दिस इज़ कश्मीर, जम्मू कश्मीर में दिस वुलर लेक इज़ वेरी फेमस. इट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द रिवर वाटर. रिवर इंडस का जो पानी है उसके वजह से ये वुलर लेक इज़ फॉर्म्ड, जो कि हमको बैकग्राउंड. पाकिस्तान बार बार हम इसलिए कह रहे हैं, यू कैन सी वी आर कंटिन्यूसली टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान. चेनाब, रावी, रिवर सतलज और ये ब्यास नदी के ऊपर एक डैम बहुत बड़ा सा बना हुआ है, विच इज़ कॉल्ड एज दी गोविंद सागर डैम. ठीक है, गोविंद सागर डैम है, बिग वन. सबसे पहले बिकॉज इट इज़ द ओल्डेस्ट रिवर सिस्टम इंडस, जिसके बारे में हमने इसलिए सबसे पहले बात किया, इंडस रिवर सिस्टम. अब देखते हैं गंगा. प्लीज़ अंडरस्टैंड द लोकेशन. ये नेपाल है, यहाँ पे दिस इज़ अ स्मॉल एरिया जहाँ पे कि वी हैव द उत्तराखंड है. उत्तराखंड में वी हैव दिस गंगोत्री एंड यमुनोत्री ग्लेशियर. यहाँ से इट इज़ कमिंग आउट, दिस इज गंगा एंड दिस इज यमुना. तो ये नदी का उद्गम स्थल है. थोड़ा सा पार्ट सम ऑफ द पार्ट चाइना ऑल्सो. तो दिस इज कंटिन्यूसली स्टार्टिंग. अब आप देखो, we were talking about tributaries. A lot of small rivers, lot of small tributaries going and joining the river Ganga. कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज के बारे में हमने पढ़ा? यहाँ पे देखो, इस रिवर के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं, शारदा रिवर स्मॉल. ये है रिवर घग्गर, जो यहाँ पे आके इट इज़ मीटिंग रिवर घग्गर, मीटिंग द गंगा. इधर से रिवर सोन इज कमिंग, दैट इज ऑल्सो मीटिंग गंगा. कोसी रिवर, गंडक, ठीक है, गंडक इज देयर, कोसी रिवर सोन इज देयर, गॉट इट. यमुना रिवर इज देयर. अब आप ये देखिए, यमुना में आके दिस इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर. ये देखो, बेतवा हैं एंड चंबल, दीज आर गेटिंग मिक्सड विथ यमुना एंड यमुना फर्दर इज गेटिंग मिक्सड विथ ये यहाँ पे, ये दिस इज़ द संगम स्थल. ये प्रयागराज, हियर इज़ द प्रयाग. हाँ, संगम जहाँ पे द गंगा एंड यमुना आर गेटिंग टुगेदर, दैट इज संगम. और आप सोन नदी देखिए, दिस सोन नदी में अक्सर बाढ़ आ जाती है, लॉट ऑफ वाटर इंक्रीजेज. सोन नदी को इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द सौरो. बिहार में पीपल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस रिवर. तो इसका फ्लोइंग सिस्टम, इसका द मूवमेंट इज थोड़ा डिफरेंट टाइप का है. इसके वजह से अक्सर लोगों को जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है.
So Gandak is there, Son is there, Kosi is there, Kosi river is again here. Okay, तो ये जो river system है, these small rivers that are there, how they are forming the tributaries of here, ये मैं हमने बताया था, गंगा इज टेकिंग अ साउथ टर्न, ये तो साउथ हो गया ना, बिकॉज दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। इधर से गंगा इज कमिंग एंड यहाँ पे इट इज गोइंग टुवर्ड्स द साउथ एंड वन ब्रांच इज एंटरिंग द बांग्लादेश। आप एरिया देख रहे हैं, दिस इज द सुंदरबन एरिया। बांग्लादेश के बारे में तो हमको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मपुत्र इज ऑल्सो कमिंग एंड ज्वाइनिंग द गंगा। तो आप ये देखिए कि कितनी सारी नदियां हैं जो गंगा का रिवर सिस्टम बना रही हैं। मैप वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज़ डू द मैप वर्क, माय डियर स्टूडेंट्स. विल कैरी ऑन in the next class. Till then, thank you so much and all the best to you.